Hello students, this is chapter number 4 of your geography book and the part of chapter number 4, the rise of commercial forestry. The title of the fourth chapter is Forest Society. So in the previous section we have seen that the British needed forest in order to build ships and railways. The British were worried that the use of forest by local people and the reckless felling of trees by traders would destroy forest. So they decided to invite a German expert, Dietrich Brandis, for advice and made him the first Inspector General of Forest in India. Brandis realized that a proper system had to be introduced to manage the forest and people had to be trained in the science of conservation. This system would need legal sanction. Rules about the use of forest resources had to be framed. Felling of trees and grazing had to be restricted so that forest could be preserved for timber production. Anybody who can cut trees without following the system had to be punished. So Brandis set up the Indian Forest Service in 1864 and helped formulate the Indian Forest Act of 1865. The Imperial Forest Research Institute was set up at Dehradun in 1906. The system, they thought, here was called scientific forestry. Many people now, including ecologists, feel that this system is not scientific at all. तो चिल्ड्रन, पिछले वीडियो में हमने देखा कि रेल की पटरियां बिछाने के लिए और भी दूसरी आवश्यकताओं के लिए अंग्रेज़ों को फॉरेस्ट की ज़रूरत थी और अंग्रेज़ों को इस बात की चिंता थी कि जो लोकल के जो लोग हैं वो जंगलों का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। व्यापारी जो लोग हैं पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं जिससे कि जंगल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने डाइट्रिच ब्रैंडिस नामक एक जर्मन स्पेशलिस्ट को बुलाया और उनसे सलाह ली और उन्हें पहला देश का इंस्पेक्टर जनरल उन्हें अपॉइंट किया। ब्रैंडिस ने महसूस किया कि लोगों को जागृत करना होगा और उन्हें बताना होगा कि जंगलों को प्रबंधन किस तरह से करना पड़ेगा और इसके लिए उन्हें एक पूरा व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा और इसके लिए उन्हें कानूनी मंजूरी की ज़रूरत पड़ेगी। अब उन्होंने ये भी सोचा कि पेड़ों की कटाई को रोककर पशुओं को चराने जैसी और भी एक्टिविटीज़ हैं उन पर बैन करके पाबंदी लगाकर ही जंगलों को सुरक्षित किया जा सकता है और जो इन सारे रूल्स को ना माने तो उसे सज़ा भी मिल सकती है। इस तरह ब्रैंडिस ने 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना की और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो कि 1865 में बना उसको बनाने में फॉर्मुलेट करने में हेल्प की। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई। यहाँ जिस प्रोसेस से शिक्षा दी जाती थी उसे ही साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया। लेकिन आज बहुत से इकोलॉजिस्ट यह मानते हैं कि ये जो प्रोसेस है यह साइंटिफिक नहीं है। Children, you have to read the chapter deeply. I will give you only summary. Foresters and villagers had very different ideas of what a good forest should look like. Villagers wanted forest with a mixture of species to satisfy different needs, fuel, fodder, leaves. The forest department, on the other hand, wanted trees which were suitable for building ships or railways. They needed trees that could provide hardwood and were tall and straight. So particular species like teak and sal were promoted and other were cut. In forest areas, people use forest products. The Forest Act meant severe hardship for villagers across the country. After the act, all their everyday practices, cutting wood for their houses, grazing their cattle, collecting fruits and roots, hunting and fishing became illegal. People were now forced to steal wood from the forest, and if they were caught, they were at the mercy of the forest guards who would take bribes from them. Women who collected fuel wood were especially worried. It was also common for police constables and forest guards to harass people by demanding free food from them. अब एक अच्छा जंगल कैसे होना चाहिए इस बारे में लोगों
के विचार अलग अलग थे। जहाँ एक तरफ विलेजर्स जो अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जंगल चाहते थे, वहीं पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग थे उन्हें ऐसे पेड़ों की ज़रूरत थी जो कि जहाज़ों में, रेलवे के लिए लकड़ी मुहैया कराने में हेल्प करें। ऐसी लकड़ियाँ जो अच्छी कठोर हों, लंबी हों, सीधी हों। इसलिए उन्होंने सागौन और साल जैसी लकड़ियों को प्रोत्साहित किया और दूसरी जो ट्रीज थी उनको काट दिया। जो फॉरेस्ट एरियाज में रहने वाले लोग हैं वो फल, कंद मूल, पत्ते आदि वन में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनसे अपना जीवन यापन करते थे और हैं। जो फॉरेस्ट एक्ट है उसके चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गईं। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंद मूल फल इकट्ठा करना आदि चीज़ें गैर कानूनी हो गईं। अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा और पकड़े जाने की स्थिति में वे वन रक्षकों से की दया के पात्र या तो दया की भीख मांगते या फिर उन्हें घूस देते। और इस तरह से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग थे या तो वो ब्राइब लेने लगे और या फिर वो दूसरी तरीके से उनसे दूसरी चीज़ें लेने लगे, जैसे कि मुफ्त में खाने पीने की मांग करना एक्सेट्रा। अब जो औरतें विशेष तौर से जो खाना बनाने के लिए लकड़ी एकत्रित करती थी वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगीं, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना भी करना। पुलिस और जंगल के जो चौकीदार थे वो उन्हें तंग करते थे और मुफ्त की बहुत सारी चीज़ें मांगते थे, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा सभी परेशान रहने लगे। इस तरह से लोगों की जो लाइफ थी वो अफेक्टेड हुई। हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन? अब फॉरेस्ट रूल्स ने कल्टीवेशन को किस तरह अफेक्ट किया, इसे देखते हैं। In shifting cultivation, parts of the forest are cut and burnt in rotation. Seeds are sown in the ashes after the first monsoon rains and the crop is harvested by October-November. Such plots are cultivated for a couple of years and then left fallow for 12 to 18 years for the forest to grow back. A mixture of crops is grown on these plots. In Central Asia and Africa, it could be millets. In Brazil, manioc, and in other parts of Latin America, maize and beans. European foresters regarded this practice as harmful for the forests. They felt that land which was used for cultivation every few years could not grow trees for railway timber. When a forest was burnt, there was the added danger of the flames spreading and burning valuable timber. अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और फिर जलाया जाता है। जब मॉनसून होता है तो उसकी जो पहली बारिश होती है उसके बाद इस राख में बीज बो दिए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में वो फसल काट ली जाती है। इन खेतों में एक साल खेती करने के बाद इन्हें 12 से 18 साल के लिए इनको छोड़ दिया जाता है ताकि वहाँ फिर से जंगल हो सकें और इन ज़मीनों पर फिर मिश्रित फसलें उगाई जाती हैं जिससे वहाँ फिर से जंगल पनप जाएं। अब यूरोपियन फॉरेस्टर्स ने देखा कि ये जो तरीका है ये जंगलों के लिए बहुत नुकसानदायक है। उन्होंने महसूस किया कि कुछ सालों के अंदर जो अंतर पर ये जो खेती की जाती है तो ऐसे में ज़मीन जो है वो उसमें रेलवे के लिए जो लकड़ी की ज़रूरत होती है, मीन्स रेलवे टिम्बर या इमारती लकड़ी वाले जो पेड़ हैं वो नहीं उगाए जा सकते। साथ ही साथ जलाते समय बहुत सारे दूसरे जो पेड़ हैं वो भी जल जाते हैं या आग की लपटों में आने का उनका खतरा बन जाता है और इसलिए उन्होंने इस प्रकार की एग्रीकल्चर पर रोक लगाने का फैसला लिया। इसके परिणाम स्वरूप जितने भी जंगल के जितने समुदाय थे उनके घरों से ज़बरदस्ती उनको अलग कर दिया गया, विस्थापित कर दिया गया और कुछ को तो अपना देश भी बदलना पड़ा। कुछ ने छोटे बड़े विद्रोहों के द्वारा अपना प्रतिरोध भी दिखाया, लेकिन जो गवर्नमेंट थी उसने फैसला लिया कि ये वाली जो खेती है यह शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है ये ठीक नहीं है फॉरेस्ट के लिए। नाउ हु कुड हंट? शिकार कौन कर सकता था, किसको शिकार की आज़ादी थी? बिफोर द फॉरेस्ट लॉज मैनी पीपल हु लिव्ड इन और नियर फॉरेस्ट हैड सर्वाइव्ड बाय हंटिंग डियर, partridges and a variety of small animals. This customary practice was prohibited by the forest law. Those who were caught hunting were now punished for poaching.
But the British saw large animals as signs of a wild, primitive, and savage society. They believed that by killing dangerous animals by British would civilize India. They gave reward for the killing of tigers, wolves, and other large animals on the grounds that they posed a threat to cultivators. A British administrator, George Yule, killed 400 tigers. Initially, certain areas of forest were reserved for hunting. Only much later did environmentalists and conservators begin to argue that all these species of animals needed to be protected and not killed. अब फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत जितने भी कानून बने उन्होंने जंगल में रहने वाले लोगों के जीवन को एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। उनका जो जीवन था वो छोटे मोटे तीतर, हिरन, इन सबको मार करके उनका जीवन यापन होता था और अब यह गैर कानूनी हो गई। तो शिकार करते हुए पकड़े जाने पर अब उन्हें दंडित किया जाने लगा। जहां एक तरफ वन जो कानून थे उनको लोगों के शिकार के से वंचित कर दिया गया, वहीं जानवरों को एक मनोरंजन का खेल बन गया। हिंदुस्तान में बाघ और दूसरे जानवरों का शिकार करना शुरू से ही नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा, लेकिन ब्रिटिशर्स के साथ कुछ इस तरह से बढ़ा कि ये पूरी प्रजातियां जो थीं जानवरों की वो विलुप्त सी हो गईं। अंग्रेज़ों की नज़र में जो बड़े जंगली जानवर थे वो समाज में प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वो हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे और इसलिए उन्होंने बाघ, भेड़िए और दूसरे जानवरों के शिकार पर इनाम घोषित कर दिए कि इनसे किसानों को खतरा है। बाद में काफ़ी समय के बाद जब एनवायरमेंटलिस्ट और कंजर्वेटर्स थे उन्होंने आवाज़ उठाई कि नहीं, जानवरों की इतनी सारी प्रजातियों की सुरक्षा होना ज़रूरी है और इनको नहीं मारा जाना चाहिए। तब उनकी सुरक्षा के लिए कानून बने और हंटिंग फिर बैन की गई। New trades, new employments and new services. While people lost out in many ways after the forest department took control of the forest. In India, the trade in forest products was not new. From the medieval period onwards, we have record of Adivasi communities trading elephants and other goods like hides, horns, silk, cocoons, spices, fibers. Communities like the Banjaras, resins through nomadic. With the coming of British, however, trade was completely regulated by the government. The British government gave many large European trading firms the sole right to trade in the forest products of particular areas. Grazing and hunting by local people were restricted. In the process, many pastoralist and nomadic communities like the Karwa, Karcha and Yerukila of the Madras presidency lost their livelihoods. Some of them began to be called criminal tribes and were forced to work instead in factories, mines and plantations under government supervision. New opportunities of work did not always mean improved well-being for the people. Their wages were low and conditions of work were very bad. They could not return easily on their home villages from where they had been recruited. अब जंगलों पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसका कंट्रोल हो जाने से कई लोगों को नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसर भी मिले। कई समुदाय अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर जो वन उत्पाद हैं उन पर व्यापार करने लगे और हिंदुस्तान में वन उत्पाद जो थे वो उनका व्यापार कोई नई बात तो थी नहीं, वो तो बहुत समय से होता चला जा रहा है। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार जो था पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में चला गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ट्रेडिंग कंपनीज थी उनको व्यापार की इजाज़त दे दी और इसके बाद जो स्थानीय लोग थे उनको उन्होंने कई बंदिश लगा दी, जैसे पशुओं को चराने की बंदिश और भी सारी बंदिशें लगा दी। अब काम के नए अवसर तो दिए गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि लोगों के जीवन की जो स्थिति थी उसमें सुधार हो गया। कई लोगों की स्थिति तो बहुत ख़राब हो गई, उनको बहुत कम मजदूरी मिलती थी और यदि वो गाँव से दूर चले जाते थे तो उनको वापसी भी उनकी इतनी आसान नहीं थी। तो चिल्ड्रन, in the next video we will read Rebellion of the Forest.